Hello to all class 11th students and class we are doing lesson number 4 types of economies, and today we will be finishing this chapter. The topic for today is going to be simple and complex economy. So simple and complex economy, right? Simple and complex economy. Now what is simple and complex economy? Basically सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी क्या है? यहाँ पे सिंपल इकोनॉमी से मतलब है अ सिंपल इकोनॉमी is that economy in which each individual specialize in the production of one commodity. Here each individual is specialized in production of one type of what? One type of commodity. ठीक है, वन टाइप ऑफ कमोडिटी में क्या होगा? इंडिविजुअल क्या होगा? स्पेशलाइज्ड होगा. So in this economy, in a simple economy, there will be no much. There will be what? There will be no much variety of products. Variety of products. ठीक है, इस तरह की इकोनॉमी क्या होगा? ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं होगी. सिंपल गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड. Simple goods will be produced. Simple goods will be produced with what? With very simple technique of production. So in such economy, the technique of production is going to be very simple and ज़्यादा वैरायटी नहीं होगी. ठीक है. Now in such an economy, one person weaves. Like we can take an example. In such an economy, one person will weave the cloth, the other person will print the cloth, the third person will cut the cloth, the fourth person will stitch the cloth. So every person does different work. So there is simple techniques of production used, and simple work is done by simple person. And what? It is a case of specialized in the case of specialized based upon simple division of labor, some persons become farmer, other weavers, and still other artisans, and so on. As a result of this specialization, different people produce more than what they require for their own consumption and trade. Right? Whereas in complex economy case में क्या होगा? Whereas in the case of complex economy, whereas what will happen in the case of complex economy? Complex economy क्या is that in which there is a high degree of specialization. There is a high degree of specialization. In the complex economy, there is a high degree of specialization. Labor skilled use की जाएगी. Variety of goods will be produced. ठीक है? Variety of goods will be produced. बहुत सारी variety of goods will be produced. ठीक है? The product process of a particular product, the work involved in the production of product is divided into different tasks. जो एक ही काम होगा, एक जो प्रोडक्शन होगा उसको अलग टास्क पे बांट दिया जाएगा. देयर विल बी मेनी डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा, और जो हर डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे होंगे उनके वो क्या होंगे? स्पेशलाइज्ड होंगे उस वर्क में. ठीक है. अगर ब्रीफ की बात करें तो मेन फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी एज अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, एक्सचेंज ऑफ मोनेटाइजेशन एंड लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होगा यहाँ पे. लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन टेक्स प्लेस. लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन हो गया यहाँ पे. लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन से क्या मतलब है? लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन से मतलब है वैरायटी ऑफ गुड्स बनेंगे, एक ही चीज की बहुत सारी वैरायटीज बनेंगी. ठीक है. और
बहुत सारा प्रोडक्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है। तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी जो यूज की जाएगी वो कैसी की जाएगी, वो भी कॉम्प्लेक्स की जाएगी। ऑलराइट, so this is your complex and simple kind of economy. So as far as simple economy is concerned, simple economy वो economy होती है जहाँ पे सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल होता है, सिंपल मशीनरी का इस्तेमाल होगा, बहुत ही लिमिटेड गुड्स बनेगी, बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं बनेगी उनकी, और यहाँ पे जो लेबर का डिवीजन होगा वो क्या होगा, ज्यादा लेबर का डिवीजन नहीं होगा, हल्का फुल्का लेबर डिवीजन होगा। यहाँ पे हर काम करने का अलग जगह होगी। मतलब अगर यहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट के अंदर या सॉरी एक ही जगह पे बहुत सारे काम नहीं होंगे। यहाँ पे एक जगह पे कपड़ा बनाया जाएगा तो दूसरी जगह पे उसको प्रिंट किया जाएगा, तो तीसरी जगह पे उसको कलर किया जाएगा, तो पोर्ट में उसको कटिंग की जाएगी, तो अगले में उसको स्टिच किया जाएगा। मतलब ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में होगा, ना कि एक ही इंडस्ट्रीज में। बल्कि कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में क्या होता है, एक ही रूफ के अंडर अलग अलग डिपार्टमेंट में सारे काम हो जाते हैं, और क्या जाता है, वैरायटी ऑफ गुड्स बनते हैं, कॉम्प्लेक्स मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, और स्पेशलाइज लेबर, कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज डिवीजन ऑफ क्या होता है, लेबर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी। नेक्स्ट इज अ क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी। नाउ क्लोज्ड इकोनॉमी, नाउ क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है, दैट इकोनॉमी which is close in the context that it do not have ट्रेड रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसके कोई ट्रेड रिलेशंस दूसरी कंट्री के साथ नहीं होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस नहीं होते हैं। ये इकोनॉमीज क्या करती हैं, अपने आप डोमेस्टिक ट्रेड करती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होती है, सेल्फ रिलायंट होती हैं, एंड दे डोंट हैव एनी ट्रेड रिलेशन विद अदर कंट्रीज। व्हाटएवर दे ट्रेड दे डू इट इज डोमेस्टिक। इंटरस्टेट ट्रेड होते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ओपन इकोनॉमीज नहीं होती हैं। सो एक closed economy is defined as an economy which does not have any economic transaction with other countries. So these economies do not have any economic transactions. These economic do not have any transactions with the other countries, with the other countries। ठीक है, तो ये इनकी मेन बात होती है। ठीक है, इट डज नॉट इंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड, देयर इज नो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, देयर इज नो एक्सपोर्ट एंड नो इंपोर्ट्स। ठीक है, किसी तरह का कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, ना बाहर वाले देशों से कुछ खरीदोगे, ना बाहर वाले देश आपको कुछ बेचेंगे। देयर इज नो फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो बेसिकली देयर इज नो फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम abroad, and there will be no factor income paid to abroad. So this is a very very important thing about what, about a closed economy. ठीक है, in view of the autocratic nature of the closed economy, its level of economic activity is not affected by fluctuations in the level of economic activities of other countries. तो अदर कंट्रीज में जो भी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आएंगे वो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आपकी कंट्री को, मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं करेंगे। नाउ एज फार एज द ओपन इकोनॉमी इज कंसर्न, as far as an open economy concerned, इसमें क्या होता है, which has economic transaction with other countries. These countries have economic, these countries have economic transactions with other countries. ठीक है, इनके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दूसरी कंट्रीज के होंगे, जस्ट इसका ऑपोजिट। दे बिलीव इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दे डू लॉट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यहाँ पे एक कंट्री में अगर कोई भी साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं तो दूसरी कंट्री को बहुत हद तक क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मे नॉट बी इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होगा
will not be equal to what? National product. Will not be equal to national प्रोडक्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी डोमेस्टिक ट्रेड तो हो रहा है, साथ साथ में क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड भी हो रहा है, तो इसलिए जो नेशनल प्रोडक्ट होगा वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से क्या होगा, ज्यादा होगा. ओपन इकोनॉमी आर हाईली इंटीग्रेटेड विद ईच अदर. द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एनी पर्टिकुलर कंट्री of economic activity or fluctuations do affect the other countries economic activities. So यहाँ पे एक कंट्री के फ्लक्चुएशन दूसरी कंट्री को बहुत ज्यादा क्या करेंगे, हद तक इफेक्ट करेंगे. All modern economies, including Indian economy, are open economies. These days you will not find any closed economy. Closed economy का टाइम चला गया. अभी जितनी भी इकोनॉमीज होती है वो क्या होती है, ओपन इकोनॉमीज होती है. They believe in international trade, they believe in interdependence. Highly interdependent these countries are. Not only the goods and services are exchanged, but the technical know-how, the training, the personals, these all things are exchanged, and the development and the growth of an economy is believed that will be increased only when you have what, an open economy. So India is also example of open economy, right? So another economy is agricultural and industrial economy. एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्या है? एग्रीकल्चर इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो जहाँ पे ज्यादातर लोग किसमें काम करते होंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते होंगे. एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी विच इज प्राइमरीली एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, विच इज प्राइमरीली एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. ठीक है, तो जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होंगी इसमें ये लोग क्या होंगे, इंगेज होंगे. मेजॉरिटी ऑफ लेबर फोर्स इन सच इकोनॉमी, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर. ज्यादातर लोग किसमें काम करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करेंगे. ठीक है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन आर कैरिड फॉर लार्ज बाय फैमिली मेंबर्स. मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया. मोस्ट ऑफ द अंडरडेवलप्ड इकोनॉमीज आर एग्रीकल्चर इकोनॉमीज. तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल कहाँ रहेंगे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिव इन रूरल एरियाज. ज्यादातर लोग रूरल एरियाज में रहेंगे. ठीक है, और वो सबके सब लोग किसमें इंडल्ज होंगे, आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में होंगे. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज वो करते हैं. सेम वे उनकी जो ज्यादा इनकम हो यहीं से होगी. ठीक है, तो इस तरह की इकोनॉमीज क्या होती है, ज्यादातर बैकवर्ड होती है. अगर आप एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बारे में बात करो तो ज्यादातर इस तरह की इकोनॉमीज क्या होती है, बैकवर्ड होती है. तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी की खास बात क्या है कि यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन जो होती है एग्रीकल्चर या अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में काम करती है, और ज्यादातर पॉपुलेशन उसी में इंडल्ज होती है, और ज्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है. और इस तरह की इकोनॉमीज क्या है, बिलीव किया जाता है ज्यादातर क्या है, बैकवर्ड है. ठीक है, और अब नेक्स्ट इसी के ऑपोजिट जो दूसरी इकोनॉमी चलेगी वो आपकी है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. व्हाट, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. नाउ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी क्या होती है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे ज्यादातर क्या होती है, इंडस्ट्रीज होती है. ठीक है, primarily engage in industrial activities. Most people are engaged in industrial activity. ज्यादातर लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में यहाँ पे एंगेज होंगे, ज्यादातर लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में काम करते होंगे. ज्यादातर जो देश की इनकम होगी, चाहे वो डोमेस्टिक या नेशनल इनकम होगी, वो इंडस्ट्रीज से ही आती होंगी. ठीक है, द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन नेशनल इनकम इज वेरी हाई. इन एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज आर मोस्टली परफॉर्म बाय हायर्ड वर्कर्स. तो यहाँ पे हायर्ड वर्कर्स से क्या किया जाता है, वर्क और लेबर लिया जाता है. तो ज्यादातर लोग क्या है इसमें सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं. इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका क्या सेकेंडरी सेक्टर है. इंडस्ट्रियल इकोनॉमी आर कैरेक्टराइज्ड बाय
concentration of population in the urban areas, developed countries are mostly industrial economy. So here क्या होगा, concentration of major population is in urban areas. ठीक है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किस कहाँ पे आपको मिलेगी, अर्बन एरियाज में मिलेगी. ठीक है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे माइग्रेट हो जाते हैं और इंडस्ट्रीज में काम करने लगते हैं. तो ये आपका है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल का वो डिफरेंस है. एग्रीकल्चर इकोनॉमी वो इकोनॉमी वो इंडस्ट्री इकोनॉमीज होती है जहाँ ज्यादातर एक्टिविटीज या ज्यादातर लोग कहाँ एग्रीकल्चर में काम करते हैं. नेशनल इनकम जो है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है और ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ रहती है, और रूरल एरियाज में रहती है. और यहाँ पे ज्यादातर इस तरह की कंट्रीज क्या होंगी, गरीब कंट्रीज होंगी, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होंगी. बल्कि ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज कौन सी होती है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज वो होती है जो इंडस्ट्रियल, जहाँ पे ज्यादातर लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं. ठीक है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज. यहाँ पे ज्यादातर लोग कहाँ बस जाते हैं, अर्बन एरियाज में बस जाते हैं. और देश की जो ज्यादातर नेशनल इनकम है वो कहाँ से आती है, वो इंडस्ट्री से ही आती है. ठीक है, नेक्स्ट इज योर रीजनल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग. बोले के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो विश्व में बने हुए हैं और वो बहुत मदद करते हैं उन पर्टिकुलर एरियाज के उस तरह के लोगों के अपने मेंबर्स को. जैसे कि सार्क है. सार्क के बारे में कब बात करें तो सार्क का फुल फॉर्म क्या है, सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. साउथ एशियन एसोसिएशन, एशिया का है ये इसलिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे. सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है. ये साउथ एशिया के कंट्रीज का एक ग्रुप है. ठीक है, इसमें ये बना था 1985 में. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हेन, 1985 में स्टैब्लिश किया गया था. और किन के लिए किया गया था स्टैब्लिश, साउथ एशियन जितनी कंट्रीज है उनके लिए स्टैब्लिश किया गया था. सार्क इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985 with 7 member countries. It has 7 members countries. कौन सी है, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड मालदीव्स. ठीक है, मेंबरशिप इंक्रीजेस टू 8 आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ अफगानिस्तान इन 2007. 2007 में इसमें 8 मेंबर्स हो गए क्योंकि अफगानिस्तान ने भी इसको कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है. अब सार्क क्यों सेटअप किया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन हो लोगों के बीच में. ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन. तो मेंबर्स की बात करें तो देयर आर 8 मेंबर्स, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, अफगानिस्तान, ठीक है, श्रीलंका. राइट, अभी इसमें अफगानिस्तान भी 8 मेंबर्स हो गए हैं. ठीक है, ये बात क्या है कि यहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन के बारे में बात की जाती है. लोगों के वेलफेयर के बारे में बात की जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलपमेंट के बारे में बात की जाएगी टू प्रमोट अमंग द कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया. ठीक है, लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाना, साउथ एशियन कंट्रीज को सेल्फ रिलायंट बनाना मेन काम क्या है सार्क का. सार्क के बेसिकली 3 मेन काम है. ठीक है, सार्क के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं. सार्क के क्या है, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहला आपका टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल. राइट, second is your to accelerate economic growth, to speed up economic growth of South Asian countries. Right, and third जो बहुत important है वो क्या है, to promote and strengthen self reliance. ठीक है, strengthen self reliance of South Asian कंट्रीज. तो ये क्या है, 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है सार्क को फॉर्म करने की. साउथ एशियन कंट्रीज, इट वाज फॉर्म्ड इन ईयर 1985 में इसकी शुरुआत हुई. और ये साउथ एशियन जितनी भी कंट्रीज है, साउथ एशिया की साउथ कंट्रीज जो है इनमें 8 इसके मेंबर्स है. 1985 में 7 मेंबर्स से शुरुआत हुई और अफगानिस्तान 2007 में ज्वाइन हुआ. इनका मकसद मेन ये है कि जितने मेंबर कंट्रीज है साउथ एशियन कंट्रीज
उनको क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, उनके लोगों का, वहाँ के जो कंट्रीज के रहने वाले लोग हैं, साउथ एशियन कंट्रीज को जो रहने वाले लोग हैं, उनमें क्या किया जाए, वेलफेयर को प्रमोट किया जाए, लोगों की भलाई की जाए, उनको एजुकेशन से लेके हेल्थ से लेके सारे के सारे अवेयरनेस फैलाई जाए। सेकेंड, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इस तरह की कंट्रीज में, लिविंग स्टैंडर्ड और यहाँ की प्रोडक्टिव एक्टिविटीज या प्रोडक्टिव स्टेमिना, लोगों के पर कैपिटा इनकम के ऊपर भी क्या किया जाता है, काम किया जाता है, मीटिंग्स हेल्ड होती रहती है। एंड स्ट्रेंथ, इसको जो साउथ एशिया कंट्रीज है ये क्या हो जाए, ये आपस में क्या हो जाए, आपस में ये काफी स्ट्रेंथन हो जाए, इसलिए इसको बनाया गया है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट सार्क, एंड देयर आर अदर मोर associations that we are going to read about ASEAN and G8 and G20 के बारे में भी पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। So this was your SAARC, and the few countries we read, that was industrial country, agriculture country, open economy and closed economy, simple economy and complex economy. So this is, I believe, enough for today. Keep completing your notes and I'll be seeing you in the next video.